یہ جو یہاں مطلب ہمیں چلنے میں دقت ہوتی ہے، ہم رات کو نہیں چل پاتے ہیں، شام کو نہیں چل پاتے ہیں، ابھی بھی وہ دکھتے ہیں۔ این سی جو بولتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے، یہ آپ نے بھی دیکھا۔ بادام کی کاشتکاری بہت کم ہو گئی ہے، لوگ سیب لگانا شروع ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ؟ ہمارے بچوں کی بے روزگاری کی بات نہ کسی نے کی ہے، نہ کوئی کر سکتا۔ اب لوگ بادام ختم کرنا چاہتے ہیں اور سیب لگانا چاہتے ہیں۔ پی ڈی پی اور این سی ہی دو پارٹیاں ہیں جنہوں نے یہاں پہ قبرستان بھرے ہیں، تو آپ کیا سوچتے ہیں اس کے اوپر؟ اس سمے ہمارا مین ایشو یہی ہے، بے روزگاری ختم ہونی چاہیے کشمیر۔ پریگام کا ووٹ ہے 5000، یہ طاقت رکھتا ہے بات کرنے کے لیے، مگر یہاں پہ کچھ نہیں، ڈیولپمنٹ کچھ نہیں ہے۔ اس وقت ہم پانپور کانسٹیچوئنسی میں موجود ہیں، یہاں پر این سی کینڈیڈیٹ حسنین مسعودی صاحب آ رہے ہیں، ریلی کو خطاب کریں گے اس جگہ پہ آ کے۔ یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ لوگوں کے تاثرات جانتے ہیں، لوگوں کا کیا کہنا ہے، کیا پرابلمس ہیں۔ حسنین مسعودی آج یہاں پہ آ رہے ہیں، کیا وعدے کیے جا رہے ہیں این سی کی طرف سے؟ میرا نام ہے عرفان احمد بٹ۔ عرفان جی، مجھے یہ بتائیں اس علاقے میں کیا کچھ پریشانیاں ہیں؟ آج حسنین مسعودی یہاں پہ آ رہے ہیں، کیا کچھ امیدیں آپ کو؟ امیدی ہے انشاءاللہ، کیوں نہیں ہے، مگر ہمارا گاؤں پیچھے لگ بھگ 70 سال پیچھے ہے، نہ پہ یہاں پہ ہاسپٹل ہے، نہ روڈ ہے، نہ مطلب پانی ہے یہاں پہ۔ یہ ادھر پاری گام کا ووٹ ہے 5000، یہ طاقت رکھتا ہے بات کرنے کے لیے، مگر یہاں پہ کچھ نہیں، ڈیولپمنٹ کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھو کالج بھی نہیں ہے یہاں پہ، ڈاکٹر سٹاک وہ کہاں پہ ہے، وہ بھی ادھر نہیں، سب سینٹر بھی نہیں ہے ادھر کچھ نہیں ہے۔ اچھا، پری گام اسی گاؤں سے نکلتے ہوئے یہ ہائی وے جا رہی ہے 244، اس ہائی وے کے آس پاس آپ کو کیا کچھ سہولتیں ہیں؟ جیسے آپ نے ہاسپٹل کی بات کی، کالجز کا کیا، تعلیم کے حساب سے کیا، باقی کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ کالج بھی سائڈ پہ ہے، ہاسپٹل بھی ہے، گراؤنڈ پلے گراؤنڈ بھی ہے، ان کی تھوڑا ڈیولپ ہونا چاہیے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں یہاں پہ روزگار کا کیا وسائل ہے؟ بے روزگاری تو بڑھتا جاتا ہے دن بہ دن، یہاں کے جو پاری گام کا نوجوان ہے وہ بیچارہ پریشان ہے۔ اگر تو آپ دیکھو گے تو یہاں کا لڑکا جس نے لگ بھگ 400 نے پی ایچ ڈی کیا وہ پریشان ہے، گریجویشن بہت مطلب ادھر 4000 بندے وہ بھی پریشان ہے، بہنیں بھائی جن نے گریجویشن کیا پی ایچ ڈی کیا وہ بھی پریشان۔ اچھا، اس بار این سی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ روزگار دیں گے، اس کے علاوہ جو پبلک سیفٹی ایکٹ ہے وہ ہٹائیں گے، اس کے علاوہ کیا این سی کی طرف سے وعدے کیے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ 370 ہو، اسٹیٹ ہوڈ ہو، اس کے بارے میں بھی ہم لڑیں گے؟ نوجوان کیا سوچتا ہے؟ نوجوان سوچتا ہے ہمارے بھائی جیلوں میں بند ہے، 4 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، ہم گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ سے وہ آن کریں اور کیا۔ جی، مجھے آپ کے بارے میں جاننا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں پاری گام سے ہوں۔ اسی پری گام سے؟ پاری گام سے۔ کیا کچھ مسائل ہیں اس گاؤں میں؟ یہاں تو بہت مسائل ہے، خاص کر ہمیں جو ہم نے لینڈ ریکارڈ جو نیشنل کانفرنس نے بنایا شیخ عبداللہ صاحب نے، وہ مودی صاحب توڑنے پر کھڑا ہے۔ وہ اس گاؤں کی سب سے بڑی پریشانی ہے، کیونکہ یہاں کی 70% لینڈ یہی ودیاوتی سرکار اسٹیٹ لینڈ ہے، یہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ ہم تو اسی لیے نیشنل کانفرنس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم یہ برقرار رکھوائیں گے۔ اور خاص کر اس پاری گام کا مسئلہ بے روزگاری، اسٹوڈنٹس یہاں، یہ تو پلوامہ ڈسٹرکٹ میں دوسرے نمبر پر پڑھائی پہ آتا ہے پاری گام، اور دیکھ لے بے روزگاری ہر گھر میں، چاہے بچیاں ہو چاہے بچے ہو، یہ تو بے روزگاری بیٹھے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ جی، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ہے زاہد۔ زاہد جی، آپ یہاں روزگار کے بہت بڑے مسائل ہیں، روزگار کی وجہ سے کافی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ تو پتہ ہے پچھلے 10-20 سال سے زیادہ ادھر بے روزگار بڑھ رہی ہے، مطلب کشمیر میں زیادہ سے زیادہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ ہاں، اس سمے ہمارا مین ایشو یہی ہے، بے روزگاری ختم ہونی چاہیے کشمیر میں، اور یہی ہے۔ اچھا، لوگ کیا سوچتے ہیں یہاں پر، لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا امید ہے لوگوں کی اس الیکشن سے؟ ہاں، ہماری بہت امیدیں ہیں، ہم لوگوں کی بہت امیدیں ہیں اس الیکشن سے، جب یہ بے روزگاری، یہ بجلی کا مسئلہ ہے، یہی باقی مسئلے ہیں، مطلب پی ایس اے کا مسئلہ ہے، باقی سارے یہی مسئلہ ہے۔ لیکن لوگ تو کہتے ہیں پی ایس اے لگانے والے بھی این سی تھی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہٹائیں گے پی ایس اے کو، اس پر نوجوان کیا سوچتا ہے؟ جی، ہمارا ختم ہونا ہے سب کا، مطلب جو لڑکے بیچارے بند ہیں پی ایس اے میں، وہ ان کا ختم ہونا چاہیے۔ وہ بھی ایسے ہیں ہم زندگی جیسے ہم لوگ اب یہ سمپل زندگی جی رہے ہیں، ویسے وہ بھی بیچارے جینے چاہتے ہیں۔ دیکھو ابھی تک جو بھی ہے، جو 2000 میں ہمارے یہاں حالات تھے، اب سال لگا ہے
पसपा, वो भी हटा नहीं है, बिल्कुल पुराने जैसे हालात ही है। अभी लोग चाहते हैं कि वो हट जाए यहाँ से। ये जो यहाँ मतलब हमें चलने में दिक्कत होती है, हम रात को नहीं चल पाते हैं, शाम को नहीं चल पाते हैं, अभी भी वो दिखते हैं। अगर हमारा सीएम उमर अब्दुल्ला साहब आए, यहाँ का सीएम आए, तो शायद कुछ फ़र्क हो जाएगी, शायद कुछ फ़र्क हो जाएगी। हम पहले सोच रहे हैं कि पहले स्टेटहुड हमें वापस मिले, स्टेटहुड वापस मिले तो हमारी परेशानी में इरिगेशन की प्रॉब्लम है हमें, इरिगेशन क्योंकि हमारे यहाँ चैनल वाटर चैनल जो है ना वो हमें यहाँ यूसमर्ग के ऊपर से आती है, वो पारीगाम के नाम पर है सारा नाला, वो भी तो लोगों ने उसमें कौड़ा करकट डाला है, वो भी सब है। और हॉस्पिटल है यहाँ, हॉस्पिटल में 10-20 मुलाजिम हैं, मुलाजिम होने के बावजूद हमारे 4 बजे के बाद कोई डॉक्टर ही नहीं होता उधर, इतना बड़ा गांव। अच्छा, हमें बताया इन्होंने कि बादाम का क्या नाम है इसका, बादाम की काश्तकारी के रिलेटेड भी एक इशू है, उस पर आप क्या कहेंगे? बादाम की काश्त हम रोज़ ब रोज़ यहाँ घटती जा रही हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई, इन्होंने टैक्स लगाया है। अब लोग बादाम ख़त्म करना चाहते हैं और सेब लगाना चाहते हैं, रेट भी नहीं मिलती, इसीलिए बादाम की हमें प्रॉब्लम है। बादाम वरना यहाँ बादाम का सबसे खाली 100 रुपया मिलता है, 70 सालों से मैंने यही देखा, खाली 100 रुपये मिलता है 1 केजी में, क्या फ़ायदा है? लेकिन बाजार में तो बहुत महंगा मिलता है बादाम। मिलता है मगर हमारे को कुछ कोई व्यापारी नहीं देता है, 100 रुपया देता है। हम क्या, मेरे पास भी लगभग 10 कनाल 15 कनाल बादाम का खेती है, हम काटेंगे नया साल, क्या करेंगे? पेड़ भी काटेंगे, हम क्या करेंगे? पहले जब बादाम की काश्तकारी यहाँ पे होती थी, सेब तो आज भी सेब की पैदावार है, बादाम हमें हर जगह पे ये देखा गया कि बादाम की काश्तकारी बहुत कम हो गई है, लोग सेब लगाना शुरू हो गए। इसके पीछे क्या वजह है? अब हम इस कैरेवा बॉर्डर में सेब लगाना चाहते हैं क्योंकि पैसे कमाने के लिए, मगर इधर पानी ही नहीं है, इसमें हम सेब भी नहीं लगा सकते। बादाम और ये ना तो सेब। प्रॉब्लम ना है। बादाम ना तो सेब है, मगर उसकी रेट बाजार में अच्छी नहीं मिलती हमें। तो आप क्या चाहते हैं सरकार की तरफ से? क्या बस रेट होना चाहिए लगभग 1000 रुपया केजी एक। टैक्स भी उड़ना चाहिए, इसकी रेट मिलनी चाहिए, या तो हमें नहर वहर चाहिए और हम सेब लगाए। हमारे पारीगाम में भी सर शाली का जो धान है ना, धान पारीगाम में बहुत खेती है, मगर किसी साल ने गवर्नमेंट ने फ़ायदा नहीं दिया। जहाँ पे 14 का सैलाब आया, कुछ नहीं फ़ायदा, ख़राब धान हो गया, कुछ फ़ायदा नहीं, बोलते हैं सब मगर करता कम। हाँ सर, इस साल भी शाली में नुकसान हुआ है क्योंकि 2-3 महीने के बाद बारिश पड़ गई और हमें ये वाटर चैनल जो है इसके पानी की किल्लत पड़ गई, पानी यहाँ पहुँचा ही नहीं क्योंकि आगे कनाल ही बंद पड़ी है। यही तो हमारी मसले हैं। शाली में भी नुकसान इस साल। हम बुज़ुर्गों के साथ साथ नौजवानों से भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एनसी यूथ विंग के लीडर हैं हमारे साथ मौजूद, जो यूथ विंग में हैं। हम इनसे बात करते हैं। मेरा नाम दानिश रशीद है, मैं पतलबाग पामपोर्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूथ विंग में एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ इस टाइम। प्रेसिडेंट पुलवामा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, जी बिल्कुल जी। मुझे आप ये बताएं कि इस बार एनसी की तरफ से बहुत सारे वादे किए गए हैं, क्या लगता है एनसी अगर हुकूमत में आती है तो पूरे होगी? जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी यहाँ पे इलेक्शन हो गए, जहाँ जब लोकसभा इलेक्शन की बात हो गई थी, जो भी वादे किए थे एनसी वालों ने वो पूरे हो गए हैं, क्योंकि मतलब एनसी जो बोलती है वो करके दिखाती है। ये आपने भी देखा होगा, आपने भी बात की होगी, जहाँ जहाँ भी कोई भी एनसी ने वादा किया है वो काम एनसी ने किया है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अगर आप देखते हैं कि बेरोज़गार बच्चों की बात होगी, बेरोज़गार बच्चों की बात हो या कोई भी मसला हो, गाँव का मसला हो, सिर्फ वाहिद एक पार्टी है जो उन मसलों का हल कर सकती है, दैट इज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस। बाकी जो भी यहाँ पार्टियाँ है दैट इज़ SRO पार्टीज़, तो उन्होंने आज तक हमें हमारे नौजवानों को मरगुजार का रास्ता दिखाया है। हमारे बच्चों की बेरोज़गारी की बात ना किसी ने की है, ना कोई कर सकता है। अगर आप चाहते हैं वाकई में आपकी बच्चों की बेरोज़गारी की बात हो, अगर गाँवों के मसले की बात हो, दैट इज़ तो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डालना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना है। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप बताएं, एनसी यूथ लीडर हैं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में, यहाँ पे हमने बाकी लोगों से भी बात की, यहाँ पे नौजवानों से बात की, वो कहते हैं कि PDP और NC ही 2 पार्टियाँ हैं जिन्होंने यहाँ पे कब्रिस्तान भरे हैं। तो आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? देखिए, अगर आज हम देख रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर BJP एक नासुर बन गई है, रीज़न क्या है? रीज़न वही पार्टी है PDP जिसने उनको यहाँ पे रास्ता दिखाया है। कैसे आप जम्मू कश्मीर के यूथ को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाए?
अगर हम PDP की बात करेंगे, PDP का चुनाव निशान आप देखेंगे कलम दवात। जिस कलम दवात से आपको जम्मू कश्मीर के यूथ का मुस्तकबिल लिखना था, उसी कलम दवात से आपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों पे पर्चे दिखाए। अगर उस पर्चे को कोई हटा सकता है, अगर जेलों से किसी यूथ को निकाल सकता है, दैट इज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की यूथ की बात हो, जम्मू कश्मीर की बेरोज़गारी की बात हो, जो भी जेलों में लड़के बांधे हमारे भाई, अगर आप चाहते हैं कि वो जेलों से बाहर आए, द ओनली सोल्यूशन इज नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनको बाहर से निकाल सकती है। अच्छा, यहाँ पे बेरोज़गारी की बात है, बाकी सारी चीज़ों की बात है। आप यूथ लीडर हैं, NC के मैनिफेस्टो में नौजवानों के लिए क्या चीज़ें हैं, ज़रा बताएं। देखिए, अगर आपने NC का मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, सबसे पहले उन्होंने एक बात बोली है कि 1 लाख जॉब हम यूथ को देंगे। तो मुझे लगता है कि 1 लाख यूथ से नौजवान खुश हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी होगा कि उससे ज़्यादा भी नौकरियां मिलेगी। फ़िलहाल हमने 1 लाख नौकरियों का वादा किया है, इंशाल्लाह और भी ज़्यादा नौकरियां मिल सकती है यूथ को। क्या लग रहा है, अभी उतनी पावर्स तो रही नहीं गवर्नमेंट के पास, अभी जो यहाँ गवर्नमेंट बनेगी UT है, अभी उतनी पावर्स तो नहीं है, तो आप क्या समझ रहे हो कि क्या होगा कुछ? इंशाल्लाह होगा, लेकिन जब हमारी पार्टी इख्तियार में आएगी, सबसे पहली बात जो होगी दैट इज स्टेटहुड को वापस रेस्टोर करेंगे। इंशाल्लाह हमें यकीन है, हमें अपनी पार्टी पे भरोसा है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, नौजवानों का तो कहना है कि पहले यहाँ पे रोज़गार नहीं है, लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, खाने को नहीं मिल रहा है पूरा, और वो गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो उस पर ज़्यादा जोर होना चाहिए या फिर? देखिए, मेरा मानना है कि रोज़गार से पहले आपको 3 चीज़ें होनी चाहिए, सुख, चैन और सुकून। अगर आपके पास सुख, चैन और सुकून होगा, तभी आपके पास रोज़गार भी मिलेगा। अगर आपके पास रोज़गार है, सुख, चैन, सुकून नहीं है, तो रोज़गार किस बात का है? तो रोज़गार को क्या करना है जब आपके पास सुख ही नहीं है, चैन ही नहीं है? आप सुबह घरों से निकलते, आपकी माँ परेशान है कि मेरा बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है कि आपका बेटा वापस आएगा। इतनी देर हो गई, 70 साल हो गए, NC ने तब क्यों नहीं काम किया? आज क्यों NC जाग रही है? NC ने तब भी काम किया है जब शेख उबला थे, जनाब शेख उबला थे, मरहूम शेख उबला थे, तब भी काम थे। यार, आपने देखा था कितना जुल्म था जम्मू कश्मीर में, शेख उबला ने वो जुल्म ख़त्म किया है। उसके बाद फारूक उबला, उमर उबला ने हमेशा लोगों की बात की है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे जम्मू कश्मीर की असम्बली में हो, हमेशा NC ने बात उठाई है। यूथ के बारे में भी हमेशा हर किसी इलाके में भी बात हो गई। जिस तरीके से आपने देखा, हम इस वक्त पारीगाम में हैं, पारीगाम में लोगों के मसाइल आपने सुने, अलग अलग जगहों के अलग अलग मसाइल हैं, लोग सोल्यूशन चाहते हैं, और इसके अलावा लोगों की क्या राय है यहाँ पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसको लेकर हमने आपके सामने रखी। अभी हम आगे चलते हैं, आगे का सफ़र करते हैं।